Hello students, welcome back to Rising Sun Premier School online classes. In today's English class, we are going to learn chapter 12 of English grammar modal. So let's start. Chapter 12 modal. The verbs which help the main verbs to express their meanings correctly are modals. Modals जो होते हैं वे एक ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं अपने मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें मॉडल्स कहते हैं. एज आर, विल, हैव, शुड, मस्ट, ought to, be, do, can, could, may, might, will, would, shall, should, etc. These are all modals as they help main verbs to express their meanings. For example, he is going to school. So in this sentence, main verb is going. And which verb is helping this main verb to express its meaning? Is. So is modal. He will go to appear in the examination. He will go to appear in the examination. In this sentence, main verb is go and helping verb, or you can say modal, is will. We should work hard. Work is main verb and should is modal. One must follow the rules of the country. So follow is main verb and this must is helping this main verb to express its meaning. So this is modal. In the above sentences, is, are, will, should and must are the modals as they are helping the main verbs to express their meanings correctly. इसमें इन सेंटेंसेस में ये जो इज, विल, शुड, मस्ट हैं ये क्या हैं? ये मॉडल्स हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं अपने मीनिंग्स को करेक्टली एक्सप्रेस करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मॉडल्स. नंबर 1, प्राइमरी मॉडल. द प्राइमरी मॉडल आर 3 इन नंबर. प्राइमरी मॉडल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3. बी, डू एंड हैव. अब बी की फॉर्म्स दे रखी हैं. इज, एम, आर, बीइंग, बीन, बीइंग, वाज, वर. डू, डज, डिड. हैव, हैज, हैड. Now next type of modal is modal auxiliaries. Some important auxiliaries are following: may, might, can, could, shall, should, will, would, ought to, must, used to, dare. Number 1, use of may or might. Now students, we will study the uses of modals, that where we have to use what type of modal. Number 1 is use of may or might. May or might is used to take permission or express possibility or wish or blessing. may और might का इस्तेमाल हम कब करते हैं? किसी से परमिशन लेने के लिए या पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, किसी की संभावना कितनी एक्सप्रेस करने के लिए संभावना, या फिर विश या ब्लेसिंग. फॉर एग्जाम्पल, मे वी कम इन मैडम. सो इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग मे फॉर परमिशन. इट इज एक्सप्रेसिंग परमिशन. My father might come today. In this sentence, this might is expressing possibility कि मेरे पापा शायद आज आए. तो possibility है, संभावना. It may rain today. This may is expressing possibility कि शायद आज rain हो, संभावना है आज बारिश होने की. May you be successful. This is wish. हम किसी के लिए इच्छा जता रहे कि तुम सफल रहो, तुम सफल बनो. May you be successful. May God help you. भगवान तुम्हारी मदद करे. So this is also wish. Now next is use of can or could. Can is used to express ability to do something. can जो है वो क्यों यूज होता है, उसका इस्तेमाल होता है क्या दर्शाने के लिए? एबिलिटी, कुछ करने की एबिलिटी. can और could is used when making a request politely. और कुड जो है उसका यूज क्यों होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, किसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं पोलाइटली. कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी टू डू समथिंग, और कैन और कुड इज यूज व्हेन मेकिंग अ रिक्वेस्ट पोलाइटली. In this sentence, this is wrong. So children, please cut it. Cut this can. After this it will be or, to do something, or could is used when making a request politely. Next is
examples of can or could. I can speak in English. So children, as I told you here that can is used to express ability. ability मतलब वो चीज करने की काबिलियत. तो मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो सो दिस इज एक्सप्रेसिंग एबिलिटी. एंड कुड इज यूज्ड व्हेन मेकिंग अ रिक्वेस्ट पोलाइटली. किसी से हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं तो कुड का यूज होता है. तो कुड यू हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करोगे, ये मतलब कुड यू हेल्प मी. सो दिस इज रिक्वेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ शैल और विल. शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन. शैल का जो इस्तेमाल होता है किसके साथ होता है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन आप समझते हैं, फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग, सेकेंड पर्सन इज द पर्सन हु इज लिसनिंग, एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन फॉर हुम बीइंग टॉक्ड अबाउट. मतलब जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन. सो शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और वी. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो होता है जैसे कि आई और वी, उनके साथ क्या यूज होता है? शैल. और विल इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स इन फ्यूचर टेंस. और विल का यूज होता है बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ जो फ्यूचर में होते हैं, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर फॉर्म में होते हैं. जैसे आई शैल रीड दिस बुक. तो आप देखिए आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लग गया? शैल. शी विल कम हेयर टुमारो. विल का यूज हम कब करते हैं? फ्यूचर टेंस शो होता है कि वो यहाँ कल आएगी, टुमारो कल आएगी, फ्यूचर, तो क्या लग गया? विल. यूज ऑफ वुड. वुड इज यूज्ड वैन रिक्वेस्ट इज मेड पोलाइटली. वुड का यूज कब करते हैं? जब रिक्वेस्ट जो है वो पोलाइटली की जा रही है, प्रार्थना विनम्रता से की जा रही है. इट इज मोर पोलाइट देन यू. इट इज मोर पोलाइट देन विल यू. जो वुड जो होता है वो विल यू से ज्यादा पोलाइट होता है. मतलब अगर हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अगर हम उसमें विल यू लगाएंगे तो उससे ज्यादा पोलाइट हो जाएगा वुड. तो वुड इज यूज्ड व्हेन रिक्वेस्ट इज मेड पोलाइटली. वुड यू कम टू हेल्प मी. क्या तुम मेरी मदद करने आओगे? वुड यू लाइक टू हैव लंच. क्या आप खाना खाना पसंद करेंगे, लंच लेना पसंद करेंगे? तो ये क्या हो गई? रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ शुड और ऑट टू. शुड और ऑट टू इज यूज्ड टू टेल द राइट थिंग एंड गिव एडवाइस फॉर मोरल ड्यूटी. शुड और ऑट टू का यूज कब होता है? सही चीज बताने के लिए और मोरल ड्यूटी के लिए, सलाह देने के लिए. हमारा क्या कर्तव्य है, मोरली हमारा क्या ड्यूटी है, उसके लिए एडवाइस दे रहे हो किसी को. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रीच ऑफिस इन राइट टाइम. हमें ऑफिस सही समय पे पहुंचना चाहिए. तो इसमें ये क्या हो गया? एडवाइस. किसी को एडवाइस दे रहे कि हमें ऑफिस सही समय पे पहुंचना चाहिए. यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स. तुम्हें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए. ओबे. सो दिस इज मोरल ड्यूटी. तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए. तो ये क्या है? मोरल ड्यूटी के ऐसा करना चाहिए. ये ड्यूटी को, ये क्या है? मोरल है. यूज ऑफ मस्ट और हैव टू. नाउ लास्ट इज यूज ऑफ मस्ट और हैव टू. मस्ट और हैव टू इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज नेसेसरी टू डू. मस्ट और हैव टू का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई चीज करना बहुत जरूरी हो. नेसेसरी मतलब जरूरी हो कोई चीज करना. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न हाउ टू स्पीक. तुम्हें बोलना सीखना चाहिए. तो ये क्या है? नेसेसिटी है. किसकी? फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन से बोल रहा है कोई कि तुम्हें बोलना सीखना चाहिए. तो ये क्या होगी? सेकंड पर्सन की नेसेसिटी हो गई. मस्ट. आई हैव टू वर्क हार्ड टू बिकम रिच. मुझे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये क्या है? हैव टू. नेसेसिटी, नेसेसरी है. अगर तुम्हें अमीर बनना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. सो आई हैव टू वर्क हार्ड टू बिकम रिच. सो दिस इज एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी, मस्ट एंड हैव टू.